तो पहले हमने स्टडी करा मीनिंग ऑफ ओलिगोपोली, मीनिंग ऑफ duopoly, meaning of different types of oligopolies like perfect oligopoly selling homogeneous products, imperfect oligopoly selling differentiated products, collusive oligopoly when they cooperate with each other while taking decisions with respect to price or output or both, non collusive आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, चलो लेट्स compete, हेल्दी कंपटीशन होगा, मजा आएगा. फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली. अब थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट ऑफ ओलिगोपोली कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली. द मेन फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली आर elaborated as follows. Few firms, so few big sellers. Under oligopoly there are few large, few big and large big, few large firms. The exact number of firms is not defined. ये नहीं कि 5 होनी चाहिए, 10 तक ओलिगोपोली है, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट, ऐसा कुछ नहीं है. बट ज्यादा नहीं, कम 2 से ज्यादा, बट ज्यादा नहीं. ईच फर्म प्रोड्यूसेस अ सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन और पोर्शन ऑफ द टोटल आउटपुट. सब बड़े बड़े सेलर्स होने चाहिए. देयर एग्जिस्ट सिवियर कंपटीशन, देयर एग्जिस्ट सिवियर कंपटीशन among different firms, and each firm tries to manipulate both prices and volume of production to outsmart each other. तो कंपटीशन है, तो कभी कोई एकदम से नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देगा, नया डिजाइन लॉन्च कर देगा, नई स्कीम्स लॉन्च कर देगा, just to attract customers. For example, market for automobiles in India is an oligopolistic, it has an oligopolist structure as there are only few producers of automobiles in India. The number of firms is so small that an action by one firm is likely to affect the rival firms. Perfect competition में कोई इतना बड़ा नहीं होता था, खैर आपने जो करना है करो, आप इन्फ्लुएंस नहीं कर पाओगे मार्केट को. बट यहाँ पे क्या है, the number of firms is so small that an action of one firm is likely to affect the rival firms. Honda ने डिस्काउंट दिया तो मारुति, Hyundai, Toyota को डिस्काउंट देना पड़ेगा. So every firm keeps a close watch on the activities of rival firms. So first feature meaning में काफी बार आ गया था, few big sellers. अब ध्यान से सुनना, interdependence. Firms under oligopoly are interdependent. Interdependence means that actions of one firm affect the actions of other firms. Actions of one firm will affect the actions of other firms as well. A firm considers the action and reaction of the rival firms while determining its price and output levels. वो एक्सप्लोर करते हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, दूसरी फर्म्स क्या कर रही हैं, उनके प्राइसेस क्या हैं, वो किस टाइप के प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं. They consider action and reaction of rival firms while determining its price and output levels. A change in output or price by one firm evokes reaction from other firms operating in the market. Keyword है ये इस पॉइंट का. Change in output or price by one firm, it will evoke a reaction from other firms operating in the market. For example, हमेशा example से explain करनी चाहिए ऐसी चीजें. For example, the market for cars in India is dominated by few firms: Maruti, Tata, Hyundai, Ford, Honda, etc. A change by any one firm, say Tata, in any of its vehicle, say Indica, Tata Indica, will induce other firms to make changes in their respective vehicles. किसी ने SUV लॉन्च करी तो कोई और कंपनी भी इमीडिएटली सिमिलर डिजाइन के SUV लॉन्च कर देता है उसी रेंज में. किसी ने स्मॉल साइज कार नहीं लॉन्च करी तो दूसरी कंपनी भी, जैसे स्विफ्ट के अगेंस्ट i20, होंडा ने अपनी होंडा जैज निकाल दी, डिफरेंट सेगमेंट, मतलब रेट्स काफी, वो डिजाइन साइज हैचबैक निकाल दी i20 के अगेंस्ट, बलेनो जो मारुति की नई वाली. तो
तो ऐसे वो जानबूझ के उस सेगमेंट में निकालते रहते हैं। डस्टर, डस्टर, फिर ब्रेजा आ गई, तो निसान की टेरेनो, ये सब सेम सेगमेंट में वो कंपटीशन दे रहे होते हैं एक दूसरे को। तो ये है इंटर डिपेंडेंस, ये है इंटर डिपेंडेंस। एक्सक्यूज मी सर, तो इंटरडिपेंडेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ओलिगोपोली, क्योंकि फ्यू सेलर्स हैं तो डिसीजंस के लिए दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। नॉन प्राइस कंपटीशन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ ओलिगोपोली। नॉन प्राइस कंपटीशन, वो कोशिश करते हैं ऐसा कि नॉन प्राइस कंपटीशन हो, वरना प्राइस वॉर हो जाएगी। प्राइस वॉर क्यों हो जाएगी? क्योंकि फ्यू बिग सेलर्स हैं, अगर पेप्सी ने प्राइसेस कम करे तो बेटा इमीडिएटली कोक को भी कम करने पड़ेंगे, ऑप्शन नहीं है। पेप्सी ने तो क्या सोच के प्राइसेस कम करे थे कि उनका सामान ज्यादा बिकेगा, लेकिन इमीडिएटली दूसरे दिन ही, अगले वीक ही कोक भी इमीडिएटली अपने प्राइसेस कम कर देती है, बाय 2 गेट 1 फ्री कोई भी स्कीम निकाल देती है। 20% एक्स्ट्रा पेप्सी में आ रहा है तो 20% एक्स्ट्रा कोक में आना शुरू हो जाएगा। क्यों? कंपटीशन बहुत ज्यादा टाइट है। तो उन्होंने कहा कि अगर हम फिर इनसे प्राइस कंपटीशन करेंगे तो उसमें हमारा ही नुकसान है, क्योंकि हम प्राइस कम करेंगे, दूसरी फर्म भी प्राइस कम कर देगी और दोनों को ही कम प्राइस पे सामान बेचना पड़ेगा। फायदा किसका? कंज्यूमर्स का। होंडा ने डिस्काउंट दिया, मारुति डिस्काउंट दे देगी, hyundai डिस्काउंट दे देगी, टोयोटा डिस्काउंट दे देगी, फोर्ड डिस्काउंट दे देगी। तो वो क्या यूजुअली ट्राई करते हैं कि नॉन प्राइस कंपटीशन हो, एडवर्टाइजमेंट्स करो, एंडोर्समेंट्स करो, मार्केटिंग करो, फीचर्स को प्रमोट करो, नॉन प्राइस कंपटीशन करो, क्योंकि उसमें वरना फर्म्स का नुकसान होगा। अंडर oligopoly, firms are in a position to influence the prices. They can fix their own prices, they are the price makers, but however they try to avoid price competition, they try to avoid price competition for the fear of price war। लड़ाई हो जाएगी प्राइसेस के टर्म्स में, तुम 2 रुपए कम करोगे, हम 5 रुपए कम करेंगे, चलो देखते हैं किसमें कितना है दम। They follow the policy of price rigidity. Price rigidity refers to a situation in which prices tend to stay fixed irrespective of changes in demand and supply conditions. They try to maintain fixed prices so that there is no price war. Firms use other methods like advertising, better services to customers to compete with each other. They compete with each other through different means, advertisements, endorsements, different schemes, but avoiding price wars. तो oligopoly का important feature है non price competition, but फीचर है, जरूरी नहीं है कि सब ये एक्सरसाइज करे, देते हैं लोग डिस्काउंट, होती हैं फिर प्राइस वॉर्स। तो होता क्या है, ध्यान से देखना, why do they resort to price non price competition? If a firm tries to reduce the price, the rival firms will also react by reducing their prices. However, if it tries to raise the price, कह रहा है जब वो प्राइसेस कम करेंगे तो दूसरी कंपनीज भी अंडर प्रेशर कम करना पड़ जाएगा उनको प्राइस, लेकिन अगर वो प्राइस बढ़ाएंगे तो जरूरी नहीं है कि बाकी लोग प्राइसेस बढ़ाए तो उनका सामान बिकेगा ही नहीं। The other firms might not do so. It will also lead to a loss of customers for the firm which intended to raise the price. जो प्राइसेस बढ़ाएंगे फर्म्स, उनका सामान कम बिकेगा। So the firms prefer non-price competition instead of price competition. तो ये था नॉन प्राइस कंपटीशन, थर्ड फीचर। फोर्थ फीचर, बैरियर्स टू एंट्री, रिस्ट्रिक्शन है, बैरियर्स टू एंट्री। परफेक्ट कंपटीशन में फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, यहाँ पे बैरियर्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, ऐसे नहीं कि जिसका मन करे वो इस इंडस्ट्री में आ जाए, रिस्ट्रिक्शंस आर देयर। The main reason, ऐसा क्यों कि restrictions हैं? The main reason for few firms under oligopoly, they are the barriers.
which prevent entry of new firms into the industry. पेटेंट्स, केमिकल इंडस्ट्री में डिजाइंस के लिए पेटेंट्स चाहिए होते हैं. रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज कैपिटल, बहुत पैसा चाहिए होता है, thousands of crores. Control over crucial raw materials, etc. They are some of the reasons which prevent new firms from entering into the industry. Barriers to entry, restrictions, limitations because of patent requirement of large capital, control over crucial raw materials required for production. Only those firms enter into the industry which are able to cross these barriers. कह रहे आ जाओ आप इंडस्ट्री में आ जाओ, 10,000 करोड़ होने चाहिए आपके पास, लगा लो अपना ऑटो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, 10,000 करोड़. लगा लो अपनी सीमेंट की प्लांट लगा दो, आपको 15-20,000 करोड़ ही चाहिए बस. तो इसी वजह से, छोटे छोटे रीजंस की वजह से only few firms enter into these industries. As a result, firm can earn abnormal profits in the long run. बेटा फीचर्स पे इसलिए स्ट्रेस कर रहा हूँ, परफेक्ट कंपटीशन के साथ इसलिए रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन एंड ओलिगोपोली. तो ये फीचर्स अंडरस्टैंड करोगे ढंग से तो कर पाओगे. परफेक्ट कंपटीशन में firms cannot earn abnormal profits or incur abnormal losses in the long run. Oligopoly में firms can earn abnormal profits in the long run. Why? Because there are few sellers. Freedom, उसमें exactly same चीज थी कि because of freedom of entry and exit. यहाँ पे freedom नहीं है, यहाँ restrictions हैं, barriers हैं, इसीलिए firms abnormal profits कमा सकती हैं. Relate करोगे तब जाके perfection आएगी. रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट, परफेक्ट कंपटीशन में नो, एब्सेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट, जीरो सेलिंग कॉस्ट. यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. इफ यू आर हैविंग अ नॉन प्राइस कंपटीशन तो आप अपने प्राइसेस तो कम कर नहीं सकते, तो कैसे compete करोगे, कैसे अपने ब्रांड को प्रमोट करोगे? एडवर्टाइजमेंट्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज. ड्यू टू सिवियर कंपटीशन and interdependence of the firms, various sales promotion techniques are used to promote sales of the product. Advertisement is in full swing under oligopoly, and many a times advertisement can become a matter of life and death. मतलब वो ads में लड़ाइयाँ हो रही होती है, एक कंपनी दूसरी की बेइज्जती कर रही होती है. कोक और पेप्सी के तो कितनी बार ऐसा हो गया है कि वो एक दूसरे के बस बेइज्जती ही कर रहे होते हैं एड में कि ये पियोगे तुम. ऐसे ही कार्स में ये कार अच्छी है, वो कार अच्छी, मतलब तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू एड वॉर्स कहते हैं उनको, क्या कहते हैं? एड वॉर्स. तो दे डोंट गेट इनटू प्राइस वॉर्स क्योंकि उसमें उनका नुकसान है, दे गेट इनटू एड वॉर्स, एडवर्टाइजमेंट वॉर्स. A firm under oligopoly relies more on non-price competition. A firm under oligopoly relies more on non-price competition. तो सेलिंग कॉस्ट पे उनका काफी ज्यादा हेवी एक्सपेंस होता है. सेलिंग कॉस्ट आर मोर इम्पोर्टेंट अंडर ओलिगोपोली देन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में तो प्राइसेस चेंज होते हैं, अलग सेगमेंट, बट ओलिगोपोली में दे ट्राई टू मेंटेन प्राइस रिजिडिटी. दे फोकस मोर ऑन एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट. नेक्स्ट फीचर करेंगे ग्रुप बिहेवियर. ग्रुप बिहेवियर ओलिगोपोली में क्योंकि फ्यू बिग सेलर्स हैं तो कहीं कहीं पे कोल्यूसिव ओलिगोपोलीज हो सकती है. ग्रुप बिहेवियर शो करते हैं. अंडर ओलिगोपोली देयर इज कंप्लीट इंटरडिपेंडेंस अमंग डिफरेंट फर्म्स. So price and output decisions of particular firm directly influence the competing firms. Instead of independent price and output strategy, oligopoly firms prefer group decisions that will protect the interest of all the firms. तो ये एक फीचर हमने करा था, इंटरडिपेंडेंस. इंटरडिपेंडेंस की वजह से ही क्या आया? ग्रुप बिहेवियर. तो ये दोनों इंटर रिलेटेड है एक तरह से. इंटरडिपेंडेंस की वजह से ही ग्रुप बिहेवियर आता है. So what is the meaning of group behavior? Group behavior means that firms tend
to behave as if they were a one big single firm, even though individually they retain their independence. कह रहे अलग अलग कंपनीज हैं, बट चलो मिलके डिसीजन लेते हैं ताकि हम एक दूसरे का नुकसान ना करें, टू प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ ऑल द फर्म्स. आओ मिलके डिसीजन लें. कोल्यूसिव ओलिगोपोली. Nature of product. The firms under oligopoly may produce homogeneous or differentiated. तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. तो जो homogeneous है वो perfect oligopoly का एग्जाम्पल, और जो differentiated है वो imperfect और differentiated oligopoly का एग्जाम्पल. The firms, if the firms produce homogeneous product like cement, steel, industry, it is an example of perfect oligopoly. If the firms produce differentiated product like automobiles, it is called an imperfect or differentiated oligopoly. So covered already. Most important feature of oligopoly, indeterminate demand curve. Oligopoly में demand curve determine नहीं हो सकता. कह रहे मतलब, कह रहे demand curve क्या होता है? Demand curve होता है downward sloping. कह रहे मतलब to sell more you have to lower the prices. As a producer अगर आप अपनी revenue बढ़ाना चाहते हो, as a producer अगर आप अपना revenue बढ़ाना चाहते हो तो आपको prices कम करने पड़ेंगे, क्योंकि demand का होता है downward sloping. Inverse relationship between price and quantity. अगर prices कम होंगे तो लोगों की demand बढ़ेगी. ऐसा होता है normally. But कहते हैं कि oligopoly में it is not possible to determine the demand curve of your product. कह रहे ऐसा क्यों? Indeterminate demand curve, very very important feature of oligopoly. कह रहे मैं होंडा, ठीक है ना, मैं होंडा कार्स हूँ, तो डिमांड कर्व क्या है कि मैं प्राइसेस कम करूंगा तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी. अमिताशा, यस और नो? जनरल टेंडेंसी यही होती है कि अगर मैंने प्राइसेस कम करे तो डिमांड बढ़ेगी. यस सर. अब मैंने डिस्काउंट दे दिए, मैंने बोला कि 1 लाख रुपीस का डिस्काउंट होंडा सिविक पे, 2 लाख रुपीस का डिस्काउंट होंडा सिविक पे. तो फिर राइवल फर्म्स, आप टोयोटा हो, आप क्या करोगे? आपकी है करोला ऑल्टिस उसके कंपटीशन में या यारिस उसके कंपटीशन में, तो आप क्या करोगे? सर मैं भी अपनी कंपनी से डिस्काउंट्स वो करूंगी लाइक. वेरी गुड. तो हो सकता है आप 2 लाख की जगह 2,50,000 का डिस्काउंट दे दो. हो सकता है कि नहीं हो सकता? यस सर. तो बट मैंने तो सोचा था कि अगर मैं 2 लाख का डिस्काउंट दूंगा तो मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी. बट क्या जरूरी है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए? नो सर. जरूरी क्यों नहीं है? सो बिकॉज अदर फर्म्स जो अदर कंपनी वो भी डिस्काउंट्स ऑफर करेगी और हमारे डिस्काउंट से ज्यादा. डेफिनेटली हो सकता है कि हमारे राइवल्स हमसे और ज्यादा डिस्काउंट ऑफर करते हैं. तो इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन द डिमांड कर्व अंडर oligopoly. Under oligopoly, the exact behavior pattern of a producer cannot be determined with certainty. You can't be certain about the behavior of different producers. So the demand curve faced by an oligopolist is indeterminate, uncertain. A firm, as firms are interdependent, interdependency की वजह से ही a firm cannot ignore the reaction of rival firms. कह रहे हमने prices कम करे तो क्या बाकी लोग जो बैठने वाले हैं? Any change in price by one firm may lead to change in prices by the competing firms. So the demand curve keeps on shifting and it is not definite. Rather, it is indeterminate. तो क्या करा हमने? ये features of oligopoly. Very, very interesting. Very, very important. Few big sellers, interdependence, non-price competition, very important feature. It gives price rigidity. Barriers to entry, because of which firms may earn abnormal gains in the long run. Role of selling cost. Selling cost का यहाँ पे बहुत important role है because of non-price competition. Group behavior होता है because of interdependence. Nature of product. So this is based on perfect and imperfect oligopoly, homogeneous and differentiated products.
indeterminate demand curve because of again interdependence. Demand curve cannot be ascertained. आप प्राइस कम करोगे तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी. फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली.